A super objective session is about to unfold. Welcome back, dear students, to another session of Fundamentals of Soil Science course compiled as per the guidelines of 5th Dean Committee ICAR. So, we all know Cropcourse is one of the largest educational platform helping you in your agriculture career goals both in your semester and also in competitive exams. So it stretches its wings in agriculture, horticulture, sericulture, and allied subjects. So by now, I believe you all are acquainted with our expert team, and few more of our experts are about to join within a span of time. So today I have compiled some of the very important objective questions from ICAR-JRF, MCAER, and few questions which were being asked in NET examinations. So a set of 35 questions is being brought up, and these questions are exactly from the lectures that I have already delivered. I believe you all have watched all those lectures and you all can answer this MCQ questions which I have displayed here in your screen. So first question, which is highly resistant to weathering? Correct answer is quartz. So your other options are feldspar, mica, none. So as per weathering sequence given by Goldich, we have seen that quartz is lying in the bottom. Its weathering index number is 6 and it is highly resistant to weathering. Second question, which of the following is easily weathered? Just पहले क्वेश्चन का reverse question is being asked. Diamond, mica, olivine, all of the above. So your correct answer is olivine. So again, the question is being asked from the same topic and the same sequence of Goldich weathering ability of different minerals. So olivine lies in the easily weathered. मोर देन ऑलिविन लाइज जिप्सम. सो ये है आपका टेक्निक. आपको एक क्वेश्चन के साथ यू हैव टू लुक इन टू वन क्वेश्चन फ्रॉम फ्यू एंगल्स. दिस विल हेल्प यू टू आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द सेम टॉपिक. ठीक है. थर्ड में हम लोग वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट पेरेंट मटेरियल्स के बारे में हमने स्टडी किया है और हमने ये भी देखा है कि एक चार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स. तो ये क्वेश्चन वही से पुट अप हुआ है. डिपोजिशन ऑफ पेरेंट मटेरियल बाय ग्रेविटी, इसको हम क्या बोलेंगे? विल कॉल इट एज, योर ऑप्शंस आर ग्लेशियर, एलुवियम, कोलुवियम और नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज कोलुवियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट डील्स विथ प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू? हमने दो कंसेप्ट स्टडी किया था, एक था एडाफोलॉजी, एक था पेडोलॉजी. तो पेडोलॉजी जो था वो था ओरिजिन, डिस्क्रिप्शन एंड असेसमेंट ऑफ सॉइल, एंड जो एडाफोलॉजी था वो था प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से. सो करेक्ट आंसर इज एडाफोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदरिंग से पूछा गया है केमिकल वेदरिंग किस कंडीशन में प्रोनाउंस ज़्यादा होता है? सो आई होप यू रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज humid tropical. Okay, chemical weathering is not possible in arid and semi-arid condition. Why?
ड्यू टू absence of water you can say, or lack of soil moisture you can say. okay, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी नहीं होगा क्योंकि हॉट क्लाइमेट में आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, इवापोरेटिव डिमांड इज़ वेरी हायर. सो इन दैट केस enough amount of water that is required to continue to hasten the process of chemical weathering may fail. So D is the correct answer. Formation of limonite from hematite is which process? So formation of limonite from hematite is actually आपका हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मीन्स व्हाट? हाइड्रेशन मीन्स हाइड्रेट होना. दो कंडीशन है, एक है हाइड्रेशन, एक है अनहाइड्रेटेड कंडीशन. अनहाइड्रेटेड मीन्स ड्यू टू लैक ऑफ वाटर. सो यह है आपका H2O. ओके, so your correct answer is out of reduction, oxidation, hydration, none. Correct answer is C, means limonite मतलब hematite के साथ water addition. Which of the following is most resistant? Your options are diamond, mica, olivine, all of the above. So your correct answer here, it will be diamond. But you can ask me that sir in last discussion आपने बताया था कि क्वार्ट्स है, बट यहाँ पे आप बोल रहे हो कि डायमंड है. सी हियर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में क्वार्ट्स नहीं है. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा कि डायमंड का भी क्या स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ वेदरिंग सीक्वेंस ऑफ गोल्ड इच. डायमंड जो है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय एलॉयज ऑफ कार्बन. वो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी वेरी टाइटली पैक्ड. तो ये वेदर होना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, मोर देन क्वार्ट्स. इसलिए यहाँ पे क्वार्ट्स आंसर होगा. ओके, डिपोजिशन ऑफ पेरेंट मटेरियल बाय सी, ग्लेशियर, एलुवियम, मेराइन, नन ऑफ द अबव. सो ग्लेशियर मीन्स बाय आइस, मैंने आप लोगों को बताया था. Alluvium means by river, marine means by sea. So correct answer is marine. Weathering started but much of the original material is unweathered. कौन सा स्टेज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप यहाँ पे स्टार मार्क लगा सकते हो. ओके, ये दोनों क्वेश्चंस पहले नेट में पूछा गया है, मैंने मार्क कर दिया 6 और 7. सो 9 का करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन सी. मैंने एक स्टेज आपको बताया था, जुवेनाइल, सिनाइल, इनिशियल, फाइनल, विराइल. ओके, तो ये पांचों स्टेजेस में कौन सा है, सो वो आपको याद रखना. ठीक है, बहुत इजी है एंड कंसेप्चुअल. नेक्स्ट वन, विच हॉराइजन इज नोन एज जोन ऑफ इल्यूविएशन. मैंने जब पढ़ा रहा था आपको मैंने दो चीज़ बताया था, एक है वॉशिंग आउट, ओके, वॉशिंग आउट, एंड एक और कंसेप्ट है आपका सेम वॉशिंग इन. ओके, सो वॉशिंग आउट मतलब एलुविएट, ई, ओके, एंड वॉशिंग इन मीन्स आई. इन का आई से आप आई याद रखना. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी बी. ओके, ए से वॉश आउट होकर नीचे चला जाता है. The soils formed under heavy rainfall area. Calcareous, saline, acidic, none of the above. So your correct answer will be acidic. अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट स्टडी करते हैं. ओके, वाई, क्यों एसिडिक है? बिकॉज व्हाट हैपेंस, जो मिट्टी में आपका आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है वो एज कंपेयर टू कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम आयंस, आयरन और एल्यूमिनियम कम इनसॉल्यूबल है. मीन्स वो पानी में ज़्यादा नहीं, दे आर लेस इनसॉल्यूबल, मीन्स दे डोंट गेट मिक्स इन द वाटर फास्टर. प्लस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन दे आर मोर soluble. So in case of heavy rainfall areas, what happens? The calcium and magnesium ions, they are leached away by the water. They are taken away. They move down the profile. And iron and aluminium, they stay on the surface. They are oxides and hydroxides. It reacts with water and creates soil acidity. Okay, ये concept है.
ये नेट में पूछा गया है, ये SRF में पूछा गया है, JRF में पूछा गया है, प्लस इन MCAER इट इज ऑल्सो बीइंग आस्क्ड. सो ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क लगा लेना, ये कंसेप्ट. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, द कन्फिगरेशन ऑफ द लैंड मीन्स स्लोप ऑफ द लैंड, दैट इज topography, relief, both or slope. So correct answer is topography and relief, both are same. So C is the correct answer. Next we have deposition of parent material by gravity. So here your correct answer will be glacier, alluvium, colluvium, none of the above. Correct answer is colluvium. Okay, next we have which part of India is having higher quantity of acidic soil? West India, East India, North East, none. So acidic soil वहीं पे ज़्यादा होगा जहाँ पे बारिश ज़्यादा है. So as compared to west and बाकी sides, North East is having more rainfall. तो वहाँ पे acidic soil ज़्यादा है. Okay. Next question we have mushroom rock formation is due to which weathering? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ऑल. सो ये यहाँ पे आपका आंसर जो है दैट विल बी योर, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? दैट विल बी योर फिजिकल. फिजिकल में कौन सा होगा? योर विंड. ओके, विंड. ठीक है, विंड से ये रॉक फॉर्मेशन होता है, स्पेशली इन अरावल एरियाज. यू कैन सी, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने मशरूम रॉक का एक डायग्राम भी आपको दिखाया था. ठीक है, शायद आपको याद होगा. So correct answer is physical weathering, but the agent is wind. What is the percentage of organic matter in soil? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंडियन सॉइल में ये बेसिकली विथ रेफरेंस टू हैव आस्क्ड, FAQ मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. तो मैंने एक कंसेप्ट आपको समझाया था, 50% सॉलिड, 50% पोर्स. ओके, सो 50% सॉइल में, सॉलिड में आपका 45% मिनरल मैटर आता है, प्लस 5% आपका क्या आता है? ऑर्गेनिक मैटर. ओके, सो 2, 7 एंड 5, करेक्ट ऑप्शन इज 5. ठीक है. नेक्स्ट, विच इज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ रॉक टू सॉइल फॉर्मेशन? वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क लगा सकते हो. बेडरॉक, प्रोफाइल, रेगोलिथ, हॉराइजन. सो करेक्ट आंसर इज रॉक से वजह होके रेगोलिथ होता है, रेगोलिथ से soil forming processes work करता है, and then we get true soil. Next question, deposition of parent material by silt. Your options are colluvium, alluvium, Lewis, none of the above. So your correct answer is Lewis. Okay, so ये जो parent material का क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है MCR में भी. So ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज रिमेंबर ऑल द एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल एंड द मटेरियल फॉर्म्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, इडोफोलॉजी, नन. सो करेक्ट आंसर इज पेट्रोलॉजी, क्योंकि जियोलॉजी में हम आर्ट स्टडी करते हैं, इडोफोलॉजी इज फ्रॉम प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are sesqui oxides? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, Fe, एंड ये नेट 2019 में पूछा गया. सो हमेशा आप याद रखना, sesqui oxides मतलब आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, मीन्स आयरन और एल्यूमिनियम के साथ वहाँ पे ऑक्सीजन भी ऐड हुआ है, दैट इज ऑक्सीडेशन. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, आई होप आप सबको, आई थिंक यू ऑल आर एंजॉइंग द सेशन. MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सेमिस्टर एग्जाम को भी हिट करेगा, प्लस आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स जो महाराष्ट्र एग्रीकल्चर काउंसिल का जो भी एग्जाम्स करते हैं वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा. एंड आई एश्योर कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, कॉमन मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट इज विच प्रोसेस? तो जिप्सियम का क्या फॉर्मूला है एक्चुअली, आपको वो पहले याद कर लेना है. वो बहुत इजी है, अगर आपने एक बार फॉर्मूला याद कर लिया तो CaSO4.2H2O. ओके, सो 2H2O मतलब क्या? ये क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके,
दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स है तो ये ऑब्वियसली एटम्स 4 हो जाएंगे। ओके, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू रियलाइज दैट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेशन। ओके, नेक्स्ट, which of the following is known as forerunners of clay formation? Reduction, hydration, hydrolysis, all of the above. So your correct answer is hydrolysis. Okay, deposition of parent material by lake, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। जस्ट एजेंट्स को घुमाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एजेंट्स को घुमाया जा रहा है, तो आपको वो चार्ट याद रखना पड़ेगा। तो लेक मीन्स ये ट्रिक यहाँ पे ये है, एल के साथ आपको एल याद रखना है। ओके, लेक्यूस्ट्राइन का एल ए के साथ आपको एल ए याद रखना है, सो दैट विल बी योर लेक से लेक्यूस्ट्राइन। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रिडक्शन ऑफ सॉयल में लीड टू विच कलर? सॉइल में बहुत सारे कलर्स होता है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू बहुत रेयर कंडीशंस पे मिलता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, वाइट, येलो। सो जब रिड्यूस्ड कंडीशन होगा वहाँ पे आपको ग्रे, ग्रीन एंड ब्लू, यू विल फाइंड दिस 3 सॉइल कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस फेवर्स लेपिडोक्टोराइट फॉर्मेशन? लेपिडोक्रोसाइट फॉर्मेशन, तो आपको पहले ये फॉर्मूला याद रखना है और उससे आपको प्रोसेस याद रखना है रिडक्शन। अगर वेदरिंग से क्वेश्चंस आता है तो ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको डायरेक्ट। दे विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मिनरल्स एंड दे विल आस्क विच एजेंट और विच प्रोसेस इज दिस, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है आप डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे, एंड मैं आपको वैसे ही समझाया हूँ ताकि आपका बेस बने। ओके, एंड मैं वो क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ओके, मूविंग ऑन। एक्सफोलिएशन इज अ प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑफ सैंडस्टॉर्म, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड विंड। सो ये आपका जो आंसर होगा दैट विल बी योर एक्सफोलिएशन, दैट इज टेम्परेचर, फिजिकल वेदरिंग का पैरामीटर है। अपर एंड बायोकेमिकली वेदर्ड पोर्शन ऑफ रेगोलिथ, horizon, rock, soil, all of the above. So your correct option will be, क्या होगा? ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इसको पेन एंड पेपर में लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। horizon, rock, soil, all of the above. So correct answer is soil. Okay, रेगोलिथ के ऊपर ही सॉइल रहता है एंड रेगोलिथ के नीचे, okay, that is the bedrock. So obviously the correct answer is option number C. Next question, which physical agent is more pronounced? Wind, temperature, water, none among this. So obviously यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा that will be your option A. Okay, wind and temperature दोनों होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, दोनों होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, बट बेसिकली विंड इज मोर प्रोनाउंस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? ये मैंने आपको बताया था, जोफी एंड जेनी दो साइंटिस्ट थे, एक ने इक्वेशन दिया था सॉइल फॉर्मेशन इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ क्लाइमेट, बायोस्फीयर, टाइम, टोपोग्राफी एंड टाइम, टोपोग्राफी मीन्स रिलीफ एंड ये आपका पैसिव फैक्टर्स है एंड एक्टिव में आपका क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर। ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा जेनी, और एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स कौन दिया? वो दिया था जोफी। ओके, यार भी आपको याद रखना है साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड रेगोलिथ, स्टोन, क्लॉड्स, बेड्स। ये आपका नेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बेड्स। ओके, सो these were your 30 super objective questions and I confirm you that यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलने का प्रोबेबिलिटी 99% है। ठीक है, सो आप लोग प्लीज़ गाइज इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कंपाइल किया है। ओके, आपको ये देखना है, जानना है और स्टडी करना है मेरे साथ। जिप्सम,
जिप्सम के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, जिप्सम कौन सा वेदरिंग है, क्या है, किस कंडीशन में मिलता है। तो क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो कभी कभी वो घुमा देते हैं। हम सब सोचते हैं कि जिप्सम मतलब 2H2O है, वो हाइड्रेशन है, वाटर एड हुआ, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा वो कभी कभी घुमा देते हैं क्वेश्चन को। सो फॉर्मूला आप हमें याद रखना पड़ेगा, CaSO4.2H2O। ओके, नेक्स्ट इज which stage is when decomposition reaches at final stage and only resistant minerals survive। okay, ये है आपका senile stage। third is chemical weathering is not possible without, क्या होगा आंसर, without H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक इन इज विच वेदरिंग। तो ऑब्वियसली ये फिजिकल वेदरिंग है, बट फिजिकल में कौन सा एजेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट विल बी योर विंड। ठीक है, देन वी हैव इज 2FeO। ओके, ये हेमेटाइट है, हेमेटाइट से ऑक्सीजन चला गया, सो दैट इज ऑब्वियसली व्हेन देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वी नो रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैंने की मेंशन किया है। फॉर्मूला ऑफ क्वार्ट्स, क्वार्ट्स हम बहुत बार पढ़ रहे हैं, क्वार्ट्स का फॉर्मूला जानना भी बहुत जरूरी है, दैट इज SiO2। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ बोल्डर्स इन कांगड़ा वैली इज ड्यू टू विच पैरामीटर। ओके, सो कांगड़ा वैली में बेसिकली ये आपका ग्लेशियर है। ओके, दैट इज पैरामीटर का जो नाम पैरामीटर है दैट इज योर ग्लेशियर। ओके, ग्लेशियर और आइस। ओके, सो दैट इज योर फिजिकल वेदरिंग, जो अभी के इन टुडेज क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ अ ग्लोबल इशू, इन टुडेज एरा you won't find such type of glaciers and such movements which may be responsible for the weathering। okay, अभी ये बहुत पहले का कंसेप्ट है, होता था एक टाइम पे जब ठंडी थी, टेम्परेट कंडीशंस था, बट नाउ सच प्रोसेसेस रेयरली हैपन्स। ठीक है, सो इतना था टिल हियर वाज योर ऑब्जेक्टिव एंड आई एम फिलिंग द ब्लैंक्स। आगे देखते हैं क्या है। नाउ अहेड वी हैव इज सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। उसमें है आपका बेसिक प्रोसेस, फंडामेंटल प्रोसेस, आगे और भी है। ये टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आई बिलीव वी ऑल विल एंजॉय दिस सेशन। सो to learn this session before I deliver, you have to subscribe our channel to get the notification कब है and किस टाइम पे है। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा our YouTube channel Crop Course। Additionally, also subscribe to our YouTube link, okay, for daily quizzes which are being created for your entrance examinations। okay, so this much, ये था आज का सिनेरियो। ओके, ऑब्जेक्टिव का मैंने कंपाइल करके आप लोगों के लिए लाया था, क्योंकि 4 थ्योरी क्लास हो गया है। ओके, उसके ऊपर बेसिस करके मैंने ये सब सुपर ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए लाया है। ओके, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन एंड व्हाट मोर यू नीड एज पर योर रिक्वायरमेंट आई वांट टू डिलीवर। ओके, सो इसलिए आप लोग भी आपका फीडबैक, प्लीज प्लेस योर फीडबैक एंड हाउ यू नीड, व्हाट यू नीड, दैट ऑल्सो जस्ट यू लेट मी नो so that we can drive in that direction and I'll obviously try my best ताकि आप सबको जो भी आपका गोल है, ड्रीम है, सक्सेसफुली फुलफिल हो। ओके, so that's all, ending up today's session here। okay, stay connected, thank you, have a great day।